Good evening from Ayodhya. 48 hours to go for the consecration ceremony of the Ram temple. The VVIPs have all started arriving, many of whom have taken, rooms in respective hotels which are there. Many are also commoners, ordinary citizens, and of course the who's who who have started arriving as well from all across the world. The Prime Minister today was in Tamil Nadu. He is trying to make that southern connect to the temple ceremony which will be happening on 22nd. Because we are in Ayodhya, we have decided to get you voices of Ayodhya. And who better to speak to about Ayodhya and the significance of 22nd than the people of Ayodhya, the youth of Ayodhya. We have a young YouTuber, Swati, joining us. Next to her is Nilesh Dwivedi, who's a guitarist. Then we have somebody who has travelled all the way from UK, Dr. Sadhvi Vakshi Bharti, who has been in Ayodhya though for the last 1.5 years. Hemant Mishra is an advocate. Then we have someone to explain to us the real estate boom which Ayodhya is witnessing, which is Dr. Rakesh Goel, someone who is involved in ensuring that that the medical facilities of the people who here, the tourists who are arriving in huge numbers, are taken care of. That is Dr. Piyush Gupta is here with us. And we also have a Katha Vachak, Rajneesh Sharan, who will explain to us the significance of that day and what should we expect on that particular day. But first up to the YouTuber, Swati. And that's the noise because these are the celebrations that you hear often in Ayodhya. Swati, if you can hear me. So this is the light and sound show that happens every day, and perhaps our show is also, it usually happens between 6:30 and 7:30, but perhaps today it has begun at 8. Swati, कुछ सुनाएंगी? आप अयोध्या में रहने वाली हैं, मुझे बताइए यूट्यूबर्स जैसे आपके हैं वो किस तरह के प्रोग्राम करते हैं? जी, मैं भक्ति भजन करती हूँ और जहाँ पे बुलावा आता है वहाँ पे जाना होता है और भजन कीर्तन और श्री राम जी की सेवा। आपकी आवाज़ डाउन हो रहा है क्योंकि इस ऑडियो से, so perhaps in another 5-7 minutes we can start again. बट मुझे ये बताइए कि आप किस तरह के प्रोग्राम करती हैं और आपके कितने YouTube फॉलोअर्स हैं? मेरे YouTube फॉलोअर्स 500 कुछ हैं और मैं सिंगिंग करती हूँ, जैसे जगराता वगैरह, कीर्तन वगैरह का छोटा मोटा प्रोग्राम करती हूँ। बाकी मंगलवार के दिन मंदिर में कीर्तन तो हर दिन रहता है। गाने डालती है ज़्यादातर? जी, ज़्यादातर गाने डालती है? जी। चलिए, इससे पहले because we are waiting for the audio to perhaps settle in here, let's listen in to all those who have gathered here. I spoke to them earlier today. A family which has come all the way from Jabalpur. कब आए आप लोग? कल आए। अच्छा, तब कहाँ रहे रात में? कल उधर रहे, विश्राम घर बना है उधर पुल के किनारे, पुल के ऊपर नीचे, उधर ही सोच रहे अच्छी महीने। और पहले कभी आए हैं यहाँ? नहीं, एक पिछले साल भी आया रहा कुंवर में, जब मंदिर का बनने का चालू रहा जब। जी, तो अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग ने भगवान की बहुत लगन है ना, तो हम पिछले साल भी आए थे सर जी, और ये साल भी रामलला के जन्म उत्सव में हम लोग शामिल होने चाहे थे। बहुत आदमी ने हम लोग हट की भाई वहाँ नहीं जाओ, बहुत भीड़ पड़ेगी। हमने बोले जो रामलला के अच्छा लगेगा वो हमें अच्छा लगेगा, बगैर रामलला के कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो हम लोग की बहुत आस्था थी कि हम भगवान के दर्शन करेंगे, उनकी चरण धूली पाएंगे। तो भीड़ तो लग रही है यहाँ पर? लगे हैं, तो फिर भी हम अपन भगवान के भरोसे हैं। जैसा आप भगवान करेंगे वैसे ही रहेंगे।
हाँ, ये तो पहले सबसे बताइए कौन सा लड्डू है ये, और क्या क्या खाने के? संक्रांत का लड्डू है जी, अच्छा, ये बूंदी का लड्डू है, बेसन का है, आटा का है, संक्रांत में बनाते हैं। संक्रांत में बनाते हैं। हाँ तो ये अपने साथ लेके चल रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा, कैसा लग रहा है? पिछले साल भी आए थे आप लोग अयोध्या, आए थे, तो पिछले साल में और इस अब क्या अंतर लग रहा है? बहुत अंतर है जी, बहुत अंतर है। जैसे क्या अंतर है बताओ? इतना अंतर है कि पिछले साल तो माने यहाँ पे माने बहुत कचरा था। अच्छा, लेकिन अब तो यहाँ इतना सुंदर लग रहा है कि देखते ही बनता। अच्छा, हाँ, और हमें 6वीं बार हो गए, मान हम 6 बार हो गए, यहाँ 6वीं बार आए हैं। हाँ, 7वीं बार फिर कब आओगे? अब 7वीं बार फिर उनकी कृपा होगी, जब आ जाएंगे, हैं? उनकी दया होगी तो फिर आ जाएंगे। फिर आ जाओगे? हाँ, मंदिर के दर्शन अभी हुए हैं, नहीं हुए? अभी नहीं हुए, तो मंदिर के दर्शन का हुआ है, इंतजार है ना? पहले भी आपने रामलीला का दर्शन किया है? किया है मैया, किया है, बहुत अच्छा लगा। गुड़लिया में किया था पहले, हम 6 बार 6वीं बार आए हम। 6 बार आए? 6 बार हो चुके, हमने 6वीं बार में आए हैं। तो पहले गुड़लिया में रहते थे, अब आज उनका प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है 22 तारीख में, हम उसी के लिए आए हैं। और कोई मंदिर गए? हनुमानगढ़ी गए? पिछले साल गए हनुमानगढ़ी गए, हनुमानगढ़ी, कोप भवन, कागुसंड मंदिर और श्री राम जानकी मंदिर है, और कौशल्या जी माने सुमंत्र, तीनों माताओं के दर्शन, और दशरथ जी के माने कोप भवन के दर्शन, माने कैकई माँ के दर्शन, ये सब हम कर चुके हैं। You tell me about yourself. When did you decide to take this form, to take this, to move completely to this kind of life? So my name is Dr. Sadhvi Avakshi Bharti and I'm a disciple of Her Holiness Ma Ashutosh Shambhri Ji. So I had met Ma about 2 years ago, and by met I mean that I had many divine experiences while I was in the UK, and I was being pulled towards Lucknow, towards Bharat, to come here because there was You studied in UK? Yes, I studied in the UK. I'm a doctor there. So I'm a doctor. I did psychology out there. I worked for a government department. So I had a really, just you could say, quite a great lifestyle. Absolutely anything that you can think of, I had. So that was my lifestyle out there. जी, मेरा नाम साध्वी ज्योति प्रभा भारती है। मेरी गुरु माँ है परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोष शामरी जी। आप लोग सब उसी? जी, हम सब उन्हीं की शिष्य आए हैं, सभी लोग यहाँ आए हैं। और मेरी गुरु माँ, जैसा कि सब जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष सन्यासियों की भूमि रही है शुरू से। इस भारत भूमि ही सन्यासी की त्याग तपस्या की भूमि रही है। प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, महर्षि अरविंदो घोष, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, ऐसे अनेकों सन्यासी हुए हैं यहाँ, जिन्होंने अपनी भारत की संस्कृति का परचम लहराया है। आज जरूरत है पुनः इस समाज को उन्हीं सन्यासियों की, उन्हीं ऐसे तपस्वियों की, साध्वियों की, साधुओं की, जो अपने भारत की संस्कृति और सभ्यता को पुनः उत्थान पर लेकर जाएं। आज विदेशों में हमारे भारत का परचम लहरा रहा है। भगवान श्री राम की कृपा है और मेरी गुरु माँ की कृपा है, जो आज विदेशों में भी हमारे भारत की संस्कृति को अपनाया जा रहा है। लेकिन भारत के लोग अपनी संस्कृति को भूल गए हैं। Tell me about yourself. And are you two related or associated in some way? Friends who may have influenced each other? Well, Jai Shri Ram, my name is Saint Gabrielle and I'm a disciple of Her Holiness Ma Ashutosh Shambhri Ji. And yes, we were sisters before, but now she's my Guru sister. Right, and that relationship changed because of my Guru Ma. Because you can tell by my skin color, I'm Indian, but I was very Western. I was very involved in the world. I was a biologist. I worked in a government department. I had that sort of lifestyle, but I'd completely forgotten Hindu Sanskriti. It's only when I met my Pudin Satguru, when I met Her Holiness Ma Ashutosh Shambhri Ji, that she taught me about Sanskriti. She taught me about Ved Mantir. She taught me about Lord Ram. I didn't know who Lord Ram was, but she taught me all of this, and she made me aware that all of these stories that we hear, right? Because what they say in the West is those are old stories, right? Thousands and thousands of years old, but they're relevant now. कब निकले थे आप लोग यहाँ? रोज 10 दिसंबर से दिल्ली से निकली है, ईस्ट ऑफ कैलाश से यात्रा निकली है 10 दिसंबर को। हाँ। और ये 40 दिनों की यात्रा करके आज 40वां दिन है और यहाँ पर पहुंची है। और पूरे अयोध्या के अंदर अभी हम घूमेंगे और दर्शन करेंगे और हरि नाम संकीर्तन करते हुए इसी प्रकार से हम जाएंगे, करेंगे। तो ये सारे लोग अयोध्या से हैं या और दूसरे जगहों से? ये लोग कुछ इस्कॉन दिल्ली से आए हैं और बाकी डिवोटीज जो है इस्कॉन अयोध्या से। कौन से अयोध्या से? इस्कॉन अयोध्या से।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सैकड़ों जो भक्त पहुंचे हैं इस्कॉन के, दिल्ली से एक लंबी यात्रा करके। आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? हम लोग आए हैं वासुदा, दिल्ली से आए। ये रथ यात्रा, ये यात्रा है दिल्ली से शुरू हुआ जी और अभी खत्म हो रही है। ये क्या रथ यात्रा है? जी, पैदल यात्रा है। दिल्ली इंद्रप्रस्थ से 41 दिन की पैदल यात्रा। इस्कॉन श्री राधा पार्थ सारथी से पैदल चल के श्री राम जी के नव मंदिर के उद्घाटन के लिए आए हैं। तो हमारे बड़ा सौभाग्य हमें हमारे ये क्या है? ये बैलगाड़ी जो यहाँ पे आई है, ये क्या? साल में 365 दिन पैदल भ्रमण करती है। अभी स्पेशली राम यात्रा के लिए इधर आई है। ये पूरे ऑल इंडिया उत्तर प्रदेश लेवल पर ये 335 दिन घूमती है। तो ये साल भर ये बैलगाड़ी चलते रहती है? साल भर चलती रहती है। तो ये बेसिकली आप जो एक धार्मिक भावना यहाँ पर है उसको प्रचारित कर रहे हैं। जी, हमारा काम ही है भगवत गीता एवं हमारे सनातन संस्कृति का प्रचार करना, क्योंकि इस्कॉन पूरे विश्व में हरिनाम संकीर्तन और भगवत गीता बुक वितरण के लिए जानी जाती है। लंबी यात्रा करके करीब 150 जो इस्कॉन के भक्त हैं वो दिल्ली यहाँ अयोध्या पहुँचे हैं। दिल्ली से एक पैदल मार्च, एक लंबा मार्च है। करीब 40 दिन से ये लोग सड़क पर थे और एक बैलगाड़ी के जरिए यहाँ पर पहुँचे हैं इस यात्रा में। 22 जनवरी को भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या को नए सिरे से सजाया संवारा गया है। मैं इस वक्त राम जन्मभूमि गेट नंबर 11 पर हूँ और ये वो रूट है जहाँ से वीवीआईपीज अंदर जाएंगे 22 जनवरी को। और इस रूट में आप देख सकते हैं कि पीएसी के जवान यहाँ पर बड़ी संख्या में डिप्लॉय किए गए हैं। पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर हैं और इस रोड को, इस गेट को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और नए सिरे से सजाया संवारा गया है। अब चारों तरफ फूलों से यहाँ पर सजाया गया है। एक बहुत बड़ा परिसर है ये और हर तरफ यहाँ पर फूल लगाए जा रहे हैं। कार्यकर्ता 24 घंटे यहाँ पर काम कर रहे हैं और एक कोशिश है, क्योंकि अब सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है और 22 तारीख को 12:20 पर भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा और उसके पहले जो लॉजिस्टिक्स हैं उस समारोह को लेकर उसकी पूरी तैयारियां की जा रही है। पुलिस की गाड़ियां, एक और पुलिस की गाड़ी, जवान जो है वो बसों में बाहर आ रहे हैं और यहाँ पर बम विरोधक दस्ता, ये यूपी एसएसएफ के जवान हैं, ये यूपी एसएसएफ की गाड़ी है और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री कार्यक्रम संदर्भ टेंटेज यहाँ पर लगाए गए हैं, क्योंकि अंदर करीब 8000 लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। 22 जनवरी को 4000 संत आ रहे हैं, 3000 से 3500 अति विशिष्ट यहाँ पर वीवीआईपीज आएंगे और उसके पहले जो पुलिस और सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है राम जन्मभूमि गेट नंबर 11 पर वो लगातार बढ़ाया जा रहा है। और ये एसपीजी की गाड़ी है जो अभी अभी आई है, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो जवान तैनात होते हैं, ये एसपीजी की गाड़ी है और प्रधानमंत्री खुद यहाँ आने वाले और इस रूट को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। और एक और पुलिस की गाड़ी यहाँ पे आई है, ये उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की गाड़ी है, उसके जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, एसपीजी है जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखती है। कोशिश है कि 22 जनवरी से पहले जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद की जाए। I am right now sitting with Iqbal Ansari. Iqbal Ansari was a litigant in the whole Ram Janmabhoomi Babri Masjid case, and amongst the many people invited, Iqbal Ansari is also one of those. I would just like to show you his invitation card with his due permission. He showed us the invitation card for the Pran Pratishtha ceremony. This is the invitation card for the Pran Pratishtha ceremony. Iqbal ji, आपको कब आया ये invitation? ये कार्ड हमको जो है करीब 10-15 दिन हो रहा है। 10-15 दिन पहले मिला आपको। तो इकबाल जी, क्या आप बोलना चाहेंगे? आप सबसे पहले तो आप उस केस से जुड़े हुए थे, उसके साथ साथ आप एक अयोध्या के निवासी भी हैं, तो अयोध्या के अंदर आप क्या बदलाव देख रहे हैं? सबसे पहले तो वो बताइए, क्या कुछ बदला है, कैसे बदला है? देखिए, अयोध्या में तो बदलाव बहुत कुछ हो गया है। अयोध्या में विकास की गंगा बह रही है। अयोध्या में एयरपोर्ट नहीं था, एयरपोर्ट बन गया है। रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा बन गया है। रोडें बनाई गई, पार्क बने, कुंड बने, सड़कें बनाई गई, लोगों के मकान भी जो है बने।
रंगे गए, पोते गए, लाइट भी लगाई गई, सारी चीज़ों के लिए का विकास अयोध्या में हुआ। अयोध्यावासी बहुत खुश हैं। अयोध्या बिल्कुल सजी हुई है, बिल्कुल दिवाली के तरीके मनाया जा रहा है। सरकार की बहुत देन है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है, योगी जी की देन है कि आज अयोध्या के लोग बहुत ही खुशहाल हैं। जो भी कमी रही वो माननीय योगी जी की सरकार में अयोध्या वालों के लिए पूरी कर दी गई। तो आपको निमंत्रण मिला है, आप जाएंगे, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे? ये 22 तारीख को जो है हमको भी निमंत्रण मिला है, सब जो है हम भी जाएंगे। अभी कोई टाइम कंफर्म नहीं है। टाइम कंफर्म नहीं है अभी। आप विकास के बारे में बात कर रहे हैं इकबाल जी, तो एक विकास की गंगा बह रही है यहाँ के, लेकिन नौजवानों के लिए, क्योंकि यहाँ के लोगों ने बहुत कठिन समय देखा है, बहुत टर्मोइल का समय देखा है ना। सोई हुई नगरी बोली जाती थी अयोध्या। तो somebody who has traveled all the way from UK, Dr. Sadhvi Awakshi Bharti, was in UK till a year ago. Yes, that's true. I was there for about a year ago. And you gave up your profession and moved to Ayodhya? Yes, I came here to Bharat. Yes, I did. I met my Ma Ashutosh Ambri ji. So what happened is that I lived a life out there that was very much based around the world, basically. I had a job. All I was worried about was getting things in the world, a good car, good home, and that's all I lived for. And being quite young as well, I was in a rat race. I want a career, I want this, I want that, and that was my life. But a turning point came in my life where I had quite a few spiritual experiences, but it wasn't something I believed in. I didn't believe in spirituality. I didn't believe in religion. It was not for me. That's what I knew. That's the culture I was born in. But then Ma Ashutosh Ambri ji, who is my guru, she gave me such divine experiences. Then when I came here and I saw her and I came into her Sanid, because you got to understand, I've come from a land where we believe in science. We believe in Vigyan. But when we came here and I listened to Ma, she showed me the eternal spiritual science. And from there, my life changed. She taught me about the Sanskriti of Bharat. Okay. And you can see for Awakshi, yourself. give us I'm a here sense now. of what does it feel like being in Ayodhya for the last 1.5 years, and what have you seen change? The cultural connect that we keep talking about, that youth are largely disconnected from the culture, from heritage. That seems to be somehow vanishing. Yeah. I don't think I agree with you, because I believe it's now starting to come in place. Like we've got Swati here right now. Usually when the dot of like Instagram started, YouTube started, people were making content based to influence people, and it does influence people, and it was all around the rat race and gaining things in the world. But where you've got a young woman like herself here who is singing about Bhagwan, about Guru, about Ishwar, so you believe that Sanskriti Connect is starting to happen. Yes. The Yuva are doing something that they should do. They are being creative. They should always be creative, but they're being creative the way that our idols were. Krishna Bhagwan, the way he did his leelas was creative. The way the Bhaks did their leelas were creative. So now, and that's the what we're seeing. Instagram generation that all of you are is actually keeping pace with this kind of content that we are also seeing go viral as well. Dr. Rakesh, मैं आपसे अब पूछूंगी, यहाँ पर रियल एस्टेट बूम भी दिख रहा है. बहुत सारे नए होटल्स बन रहे हैं, जो लोगों के घर हैं वो लोग कन्वर्ट कर रहे हैं बेड एंड ब्रेकफास्ट में. ये सब अपॉर्चुनिटीज जो आ रही हैं वो किस तरह से आप लोग यूटिलाइज कर रहे हैं? देखिए, अयोध्या काफ़ी समय से उपेक्षित रहा था और पिछली सरकारों ने इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया. 2014 के बाद जब मोदी सरकार आई, योगी सरकार आई, तो उन्होंने इंफ्रा पे, अयोध्या के पूरे कायाकल्प पे बहुत अच्छा काम किया. और जो दिव्य भव्य और नव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और 22 तारीख को जिसका उद्घाटन है, उसकी वजह से पूरे विश्व के सनातनियों में बड़ा उत्साह है. और आप देख ही रहे हैं, अपार जनसमूह अयोध्या में इस वक्त आया है. तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके गवर्नमेंट ने बहुत सारी प्लानिंग्स की हैं. इंफ्रा के ऊपर बहुत सारे काम किए हैं जो आज तक नहीं हुए थे. जैसे एयरपोर्ट्स को बनाया, रेलवे को पूरा अपग्रेड किया, नए स्टेशंस बने, बस अड्डों को बनाया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, घर घर पानी की सुविधा, सीवरेज को ठीक करना, और न्यू वैदिक अयोध्या सिटी का निर्माण जल्दी स्टार्ट हो जाएगा. लगभग 31,000 करोड़ रुपए का बजट सिर्फ अयोध्या के रेनोवेशन पे मिला है, अयोध्या को डेवलप करने के लिए मिला है. इसका लाभ यहाँ की आम जनता को मिल रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है.
लोगों ने अपने घरों को रेनोवेट किया, बीएनबी के अंदर कन्वर्ट किया, और जो रेंट उनको महीनों में भी नहीं मिलता था आज वो हर रोज कमा रहे हैं, उनको एक रोजगार मिला। जो लोग जॉब की तलाश में घर को छोड़ के, माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को छोड़ के बड़े शहरों की तरफ मूव करते थे, लखनऊ जाते थे, वो पलायन यहाँ पे रुका है। और देश विदेश से लोग आज अयोध्या के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और पिछले 1.5 साल के अंदर अगर हम प्राइस एप्रिसिएशन की बात करें तो लगभग 5 से 8 गुना तक यहाँ रेट हो चुके हैं, और आने वाले शायद 1 से 1.5 साल के अंदर ये 10 गुना चला जाएगा। तो ये जो एप्रिसिएशन की आप बात कर रहे हैं उसी पर हम अब रजनीश जी को लाएंगे। रजनीश जी, जो माहौल बदल रहा है अयोध्या का, ये जो किताब में है, जो रामायण में है, उसमें अयोध्या का क्या डिस्क्रिप्शन है? जय श्री राम। अयोध्या जो आज बदल रही है और सबकी नज़रों में, पहले की पीढ़ी ये रहा कि अलग जनरेशन चलते थे, अब धर्म के लोग आस्था कर रहे हैं, जिसमें मानसकार तुलसीदास जी ने कहा, अवधपुरी सोहई एहि भांति प्रभु ही मिलन आई जनुराती। जो 22 जनवरी आने वाली है उसमें रात्रि ऐसे जगमगा रही है जैसे कि स्वयं वो प्रभु से मिलने के लिए आतुर है। जहां जिस देश में, वेश में, परिवेश में, जिस भाव से जो है एक ही इच्छा लेकर के चल रहा है कि मुझे अवधपुरी जाना है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि 22 जनवरी तक आप लोग रुके रहिए। रजनी जी, सवाल ये भी है कि जो अयोध्या, जो रामायण की में जो लिखा हुआ है उसमें किस तरह का सीवेज सिस्टम था, किस तरह की सड़कें थी, कुछ हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि ये जानकारी भी जरूरी है, नए जनरेशन को ये पता रहना चाहिए। पहले की जो व्यवस्थाएं थी, लाइट नहीं रहती थी, पहली व्यवस्था जो कि अयोध्या सुहावनी है, लाइट रहे न रहे आपको संत जप करते हुए मिलेंगे, सरयू घाट पे अवश्य मिलेंगे, राम पैड़ी पे मिलेंगे। तो पहले लाइट की व्यवस्था कम थी, अब एनी टाइम, अब आदमी ये सोचता है कि लाइट कब कटेगी। ऐसा क्यों सोचते हैं आप? अच्छा है, बिजली हमेशा रहनी चाहिए। नहीं, मीटर थोड़ा कम गिरे तो आदमी सोचता है कि लाइट कब कटेगी। ये व्यवस्था हो गई। सड़क अब तो इस तरह से व्यवस्था है कि आप आंख झपकिए तब तक तत्काल पता चला कि हम हनुमानगढ़ी पहुंच गए। ये व्यवस्थाएं पहले नहीं थी। हनुमानगढ़ी जाने में कम से कम लगता था तो 10 मिनट का समय लगता था। आज ये व्यवस्था हो गई है कि आप बैठिए और तत्काल हनुमानगढ़ी पहुंचिए। बसें चल गई। व्यवस्था मतलब जिस तरह से मोदी जी ने दिया, जितना सराहना करो उतना ही कम है। सवाल ये है, अब मैं आऊंगी डॉक्टर पीयूष गुप्ता के पास। डॉक्टर पीयूष गुप्ता, यू मैनेज द मेडिकल सेंटर। What is the number of tourists that you are seeing on an average now in the run up to 22nd? हमें डॉक्टर, जैसे कि हम लोग को शुरुआत में हम लोग 6 महीने की प्लानिंग से चल रहे थे। पिछले 6 महीनों से प्लानिंग चल रही थी कि अयोध्या में श्रद्धालुगण आएंगे, जो कि पूरे देश से, पूरे विदेशों से रहेंगे, और हो सकता है 22 जनवरी में जो हम नॉर्थ इंडिया के लोग ठंड का एहसास कर सकते हैं, झेल सकते हैं, वो साउथ के, महाराष्ट्र के, नॉर्थ ईस्ट के लोग वो मौसम को ना झेल सके। तो ये समस्या एक शुरुआत में ही सब लोगों द्वारा की गई कि ये एक जनमानस का सैलाब होगा, जिसमें अनेक लोग यात्रा की थकान, कई लोगों को मौसम का अनुकूल नहीं हो जाना, खाने का परिवर्तन, हम लोग को पानी का चेंज। तो ये होता है कि जब यहाँ पर लोग आते हैं तो इस भाव से आते हैं कि हमें अयोध्या दर्शन करना है, परंतु उसके जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, हाँ, उसका ध्यान नहीं रहता, क्योंकि वो पूरे जोश में रहते हैं। लेकिन तो उसका ध्यान। लेकिन पीयूष, किस वेदर में ज्यादा लोग आते हैं? अभी तक अयोध्या में लग रहा है कि 12 महीने आएंगे, लेकिन पहले कब आते थे? पहले तो देखिए, हम लोग के मुख्य जो राम नवमी होती है, परिक्रमा होती है, वहाँ पर हम लोग मेडिकल कैंप्स हमेशा लगाते थे। जो भी मेन उत्सव, माघ मेला हो गया, कार्तिक पूर्णिमा हो गया, तो इन सभी में मेले, क्योंकि अयोध्या में पहले से भी लगते रहे हैं, तो डॉक्टर्स का एक बहुत बड़ा भूमिका है, क्योंकि नंगे पैर लोग, अधिकतर लोग चलते हैं, तो पैरों में कभी कांटे लग जाते हैं। युवा डॉक्टर हैं जैसे आप हैं, उन लोगों को ये नहीं लगता अयोध्या छोड़ करके जाकर के लखनऊ में नौकरी करें?
काशी है, काशी चले जाएं या दिल्ली चले जाएं, कहीं और बड़े शहर में नौकरी करें? यही तो सोच बदलनी है और इसीलिए तो हम अयोध्या में हैं, क्योंकि हम अयोध्या में रहेंगे और हम अपने देखिए नर सेवा नारायण सेवा होती है, तो अगर हम नर की सेवा नहीं करेंगे, अपने लोगों की सेवा नहीं करेंगे तो हम ईश्वर की सेवा कैसे कर पाएंगे। सिर्फ ये सोचना कि हम कोई भी ऐसी चीज़, हमें अपने एक जिसे कहते हैं कि कर्म ही पूजा, हर ट्रक के पीछे लिखा रहता है, लेकिन कर्म अगर हम उस कर्म को ठीक से कर पाए, अपने डॉक्टर होने का हमें एक डॉक्टर की आप एक समझ लीजिए कि हम डिग्री का अपने कार्य का प्रयोग अगर हम जनमानस के लिए नहीं कर पाए तो वो क्या किस काम का है। जी बिल्कुल सही बोला आपने। विनय सहस्त्रबुद्धे, बीजेपी लीडर, इज जॉइनिंग अस लाइव। विनय जी, the scene in Ayodhya or the euphoria in Ayodhya is palpable. You are also carrying out some religious programs there. Give us a sense of what does it feel to be, welcoming 22nd. Yeah, I would make a slight change that whatever the atmosphere that the nation is now experiencing today is deeply spiritual. I wouldn't say it is religious, because spirituality is something which is the Atma, which is the soul of India. And therefore, everywhere we see that the manifestation of this spirituality and the commitment to our spiritual values is everywhere. I believe that gone are the days of being told to feel shy about your religious or spiritual identity. We are now proud of, we are now taking pride in our spiritual identity, our religious identity as well. And nobody is thinking twice when he is joining the chorus of Jai Shri Ram. The entire nation looks like united in crying. In chanting about the Ram Naam, and also in giving the slogan of Jai Shri Ram. The point that you are talking about is to take pride in our religious identity. We are seeing the youth of India, particularly the youth that we are interacting with here in Ayodhya. A number of them are sitting with us. They are also talking about that spiritual connect. You have been the head of the cultural center here in India. What efforts have been made by the government in the last few years, particularly for ensuring that? Well, I think it was just trying to revisit our soul, our core, our fundamentals. And that is what, unfortunately, was prevented from happening earlier. And this government, and not only this government, I would say post Atal Bihari Vajpayee's government, during his government and thereafter, the people of India have become acutely conscious of their spiritual identity, their religiosity, and therefore I believe the youth today, and largely most of them are millennials, now they know that we are not committing any mistake, or we should not be unnecessarily feeling apologetic about our religious identity, because our identities never conflict with each other. We are Indian, we are Hindu, we are Bharatiya, and all these things in a way provide us a common identity. Unnecessarily, people bring in several issues which divide us, and the nation has overcome these divisive forces. We are all one. The integrity is for everybody to see around when the entire nation is witnessing the chorus of Jai Shri Ram everywhere. And therefore, this fervor, I am afraid that I believe will not be misinterpreted by the wokists, those who indulge in wokism today, whether they are in the Western world or some of them are here in India as well. I believe they should shed this feeling of being apologetic and join the chorus of Jai Shri Ram. Yes, and the millennials certainly in Ayodhya are creating reels. They are Instagramming content that they are creating here.
And just about every nook and corner, one would say, is about a selfie point or some kind of connect that they are looking at to what we are seeing, the biggest historic event of our times. Mr. Sahasrabudhe, last question. Particularly with millennials, has there been a special effort to connect with Lord Ram? Because, are they really aware of the history, or the content has to be made more relatable to them? I am sure the millennials are deeply conscious about this. Everybody of us know that the millennials are such who do not go by just hearsays. They want evidence. They are more pragmatic. They are more logical in their thinking. And therefore, since they are conscious of the history of Ayodhya and how 550 years we were kind of told to kind of forget the history of the birth of Lord Rama in Ayodhya, and therefore now having been conscious about the real history, I'm sure they are committed to the cause of not only the rebuilding of the temple, which is just one part of it, but revisiting the real soul of India, the core of the idea of India. That is what is happening, and I'm sure they are now feeling more happy, more satisfied, and they are really looking forward to a glorious future with some inspiration, some motivation coming from the story of Ramayana. And will you be among those, Mr. Sahasrabudhe, who will say that perhaps a new chapter of culture and civilization will be written from Ayodhya certainly, through certainly. Ayodhya on 22nd? See, let me bring an analogy to the fore. See, this year happens to be the 350th year of the coronation of Chhatrapati Shivaji Maharaj. So the work of Chhatrapati Shivaji Maharaj, which was like shaking the entire nation, the society of his times, and to tell the entire society that you can also win. This particular "you can also win" kind of a sense is now here for everybody to see everywhere in India. That we need not be unnecessarily feeling that we have always been defeated and we never can overcome this sense of defeat. I believe Ayodhya marks a watershed in the history of India. A new chapter is being written, and everybody is conscious, everybody is aware, everybody takes pride in the feeling that we can also overcome this feeling of being defeated all along, and we can win over. Watershed moment, that's the takeaway. Vinay Sahasrabudhe, pleasure speaking to you. Thank you so much for speaking to NDTV. Let me come back to the panelists here. मैं आपसे पूछूंगी हेमंत मिश्रा जी, ये भी तो सही है ना कि जो मिलेनियल है, जो नया जनरेशन है, उसको कनेक्शन के लिए कुछ फैक्टर चाहिए लॉर्ड राम से, तो वो आप लोगों के लिए क्या फैक्टर है? क्या आप अयोध्या में हैं, ये है? हाँ, अयोध्या से कम एक सदियों पुराना जो सदियों पुराना खूनी संघर्ष था उसका अंत हो गया है, और अब नई नई चीज़ें यहाँ क्रिएटिविटी हो रही है, जैसे मंदिर बन रहे हैं और भी जगह राम से जुड़े हुए सारी चीज़ों को, जैसे राम भरत कुंड हो गया और दर्शन नगर हो गया, मखौड़ा धाम में जहाँ पिताजी उनके यज्ञ किया था, सबको जोड़ रहे हैं आपस में, तो जगह जगह नई चीज़ें बन रही हैं, तो हम लोग के लिए अच्छा रहेगा सबके लिए। ओके, आपने सही बोला, अच्छा रहेगा। चलिए अब इसी की बात करते हैं, क्योंकि लगता है फिर से प्रोग्राम शुरू हो रहा है, तो 2 बार होता है।
come very often, mostly come for kathas and going around the mandirs and so on, but this is the first time I'm experiencing it. So what's your sentiment like when you watch this? The loud music, the color, everything. What I seem to think is the question that you were asking about youth and youth connectivity, how the youth connects. It connects to things like this. This is what people are doing in the West, but they're connecting to Adhyatmik, to Ram and Ramayan through this. And the reason being is because we have internal music within us that attracts. And that's what Lord Ram does. And that's what's happening here today. Okay, that's very well explained. So the youth connects through these light and sound shows. Yes, of course, ma'am. It is just the representation of our historical culture. That is Ramayana and that is Mahabharata. And all the youth, whoever is watching this, is being connected through the roots of Ramayana and Mahabharata. Because Lord Rama is the idealistic person. He is a son. He is a good father. He is a good son. He is a good husband. He is a great brother. So Lord Rama is just like us. We all are familiar with them. And what else we can say? We are just fortunate that we are here and we are in the abode of Lord Rama. So let me get you more voices. The group that is here. How often do you come here for these events? These events that have been organized, the light and sound show. Ayodhya is changing to make it more relatable to the youth, the new generation. Yeah, it is definitely one of the things which attracts a lot of people. But apart from that, they have lot of attraction towards Ayodhya from a very longer time. Or even though Kashi, Ayodhya, Mathura, all the religious places have, even though there was no light and sound show, but people used to come for Panch Kosi, 84 Kosi, 14 Kosi, so they walk on barefoots. Being me a doctor, even though these events are... अपने दोस्तों को बोला है जो डॉक्टर्स जो शिफ्ट कर गए कि यहाँ पर आइए नई अयोध्या को देखिए. I have invited around more than 1,000 doctors who will be serving Ayodhya from 15th of January to 28th of February, and those will be on rotation basis. We have a Air Force management which is set up within 9 minutes, and we have already have one center of around 5,000 square feet, which is dealing with any of the emergencies which are taking place, which might take place. But we are actually any of the event where there is gathering, there is a lot of duty of the doctor. Okay. So let me try to understand from you. इस तरह का जो कार्यक्रम होता है उससे युवा क्या सोचते होंगे? आजकल के युवाओं को चाहिए डांस. तो पहले अश्लील गानों पे होता था, अब ये है कि भक्ति भजन, भक्ति म्यूजिक, तो पब्लिक नाचे, भक्ति में नाचे. इस वजह से यह म्यूजिक सबको मस्ती में लेकर के आ रही है. जो इस तरह का है ये हर जगह होता है? नहीं, ये दीपोत्सव के बाद ये चालू हुआ. हाँ, उसके बाद ये पूरे भारत में अब राम का, शिव का, कृष्ण का, राम का है, राम जी का धुन है. अब इसमें कोई भजन में रस नहीं है, सिर्फ म्यूजिक, ओनली ऑन म्यूजिक. ओके. इस तरह के जो चेंजेस हो रहे हैं अयोध्या में, आपने बताया फुटफॉल्स बढ़ेगा, टूरिस्ट लोग ज्यादा आएंगे, तो क्या उम्मीद है आपको और इस तरह के कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे? डेफिनेटली काफी कल्चरल प्रोग्राम होंगे. और जो ये आप उद्घोष भी सुन रहे हैं, 500 वर्षों की लोगों की दबी आवाज है जो आज निकल के सामने आ रही है. और जितना इंफ्रा यहाँ पे बढ़ रहा है, इससे देश की जीडीपी के अंदर भी एक महत्वपूर्ण योगदान अयोध्या देने वाला है. और यूपी के यशस्वी मुख्यमंत्री ने घोषणा भी कर दी है कि आने वाले समय में भारतीय जीडीपी के अंदर 20% से ज्यादा योगदान सिर्फ यूपी से जाएगा. The light and sound show has come to an end. So let's start wrapping up this conversation, and I'm going to begin with a YouTuber. कैसे अभी इस कार्यक्रम को कैसे मैं एंड करूं, कुछ अपने अंदाज में बताइए. कहानी समय के अनुसार बदलती है, पर सत्य सदा शाश्वत रहता है. सत्य
जैसे सरजू नदी और सरजू तट पर बसी रघुकुल की राजधानी अयोध्या। लेट मी गेट अ क्विक वर्ड फ्रॉम यू। मुझे बताइए 22 जनवरी का महत्व युवा के लिए क्या होगा? 22 जनवरी का जो महत्व है ये आज से नहीं, अनादिकाल सतयुग से अगर जोड़कर देखा जाए तो ये समय का इंतजार हम सबको सदियों से था। क्योंकि राम जन्मभूमि में जब हम लोग दर्शन करने जाते थे तो कष्ट होता था कि हम सभी महल में रहते हैं, घर में छत के मकान में रहते हैं और मेरे प्रभु ठाट में रहते थे। पल्ली बदलने के लिए सरकार के पास, कोर्ट के पास जा करके जब पुजारी जी लेकर आते थे तब जा करके बदलता था। आज अभी आपने भजन सुना, अवध में राम आए हैं। हाँ। परंतु ये मेरा अनुभव है जी। कि राम आए नहीं हैं, राम पहले से थे और हमेशा रहेंगे। राम कहीं जाते नहीं, किसी के लिए राम किसी के घर में है, किसी के हृदय में है, लेकिन मेरे राम जो अयोध्या के राम हैं, वह राम इस कण कण में निवास करते हैं। मेरे राम कहीं गए नहीं, मेरे राम वहीं हैं। हमारा और समस्त देशवासियों का ये सौभाग्य है कि एक संत रूपी जो स्वयं इस समय प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं, वो राम जी को अब भवन में ला रहे हैं। तो ये भवन के नाम पे जय जयकार होना चाहिए। बोलिए अयोध्या धाम की जय। डॉक्टर पीयूष गुप्ता जी, quick 20 seconds to you. 20 second, what will it mean for people of Ayodhya, particularly those who have left Ayodhya, many doctors who would have gone for better avenues? जब मैं पढ़ रहा था, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मेरे फ्रेंड्स कहते थे कि तुम कहाँ से आए हो, तो फैज़ाबाद बोलता था, तो शायद सोचते थे अच्छा दिल्ली के पास, नहीं मैं कहता था फरीदाबाद नहीं, अच्छा वहाँ जहाँ चूड़ियाँ बनती हैं, नहीं फिरोज़ाबाद भी नहीं, तो ये फैज़ाबाद है कौन सी जगह है? तो ये लोगों को बहुत ही, अब हम गर्व से कहते हैं कि नहीं मैं अयोध्या से आया हूँ और पूरे देश दुनिया में ये इसका नाम है। तो सारे दोस्त अब भी कहते हैं कि शायद उस समय हम लोग रिकॉग्नाइज कर, तो मुझे भी एक तरह का गर्व फील होता है कि मैं अयोध्या से हूँ, तो अपने आप को एक गर्वान्वित फील करता हूँ। तो Okay. So, I think the best way to end this discussion would be to go to the three who are sitting on that corner and starting with you, Avakshi. 20 second, what will it mean for your friends who are in UK and what will it mean to you? Well, to the world, it will be a day that shakes the world, and the UK are celebrating. It is a big, massive achievement because looking at Ramji, they say, Yoganand Paramahansa said, the biggest sin is to be oblivious to God. But with what's happening on the 22nd, no one in the world will be oblivious to Ramji.